So example number 10.1. In last lecture we have already studied. Example 10.1. Question was that give possible isomers of C5H11Br. C5H11Br ના શક્ય ઉદાહરણો એટલે કે બંધારણો, તેમના IUPAC નામ અને પ્રકાર જણાવો. Explain the structures, names and type of C5H11Br. તો પેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ એના IUPAC नाम અને બંધારણ જોઈએ तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ऐसा दिया था कि 5 कार्बन की चेन. ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट चेन ऑफ 5 कार्बन इफ फर्स्ट पर Br 1 ब्रोमो पेंटेन, सेकंड पे Br 2 ब्रोमो पेंटेन, थर्ड पे Br 3 ब्रोमो पेंटेन. सो दीज आर डिफरेंट 3 एग्जांपल्स ऑफ 5 carbon bromide. Okay, now we will take a 4 carbon chain. So in 4 carbon chain 4 possibility are there. Okay, 4 possibilities are there in 4 carbon chain. You can see first per Br, second per methyl. Okay, same way first per Br, third per methyl. Okay, फिर second per Br, second पे methyl. And last में second per Br and third per methyl functional group. So 4 carbon having different 4 possibilities for IUPAC naming. And last example 3 carbon chain, it has only one possibility, first per Br and second per 2 methyl group. Okay, so these are 8 isomer samghatak isomers of C5H11Br. So first question is completed, structures of isomer. Okay, if you are writing this answer you will get 0 marks because जब तक है हाइड्रोजन. ओके, आपको हाइड्रोजन यहाँ पे फिल करने होंगे. अगर कार्बन उसके 4 बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी तो उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा. If carbon has 1 bond, 3 hydrogen, 2 bond, 2 hydrogen, and 3 bond, 1 hydrogen. Okay, so you will put hydrogen atoms with each and every carbon atom. Okay, so these are bond line structures which you should know, and then after you can give different structures. Let us see that example. Okay, see the examples. Example number 1. First example. Example number 1, 5 carbon chain, first per bromine, that is 1 bromopentane. Okay, kay type no bromide che? Which type of bromide? So you have to remember, bromine containing carbon is attached with 1 carbon only. ब्रोमीन वाળો કાર્બન એક જ કાર્બન સાથે છે, so it is called primary. Okay, second example 5 carbon chain, second per Br. So bromine containing carbon is with 2 carbon, so क्या होगा 2 bromopentane, and bromine containing carbon is attached with 2 carbon, so that is secondary bromide. Third example 3 bromopentane. Okay, bromine containing carbon is attached to 2 carbon atoms, so that is called secondary, like a dvitiya. So first 3 examples of 5 carbon we have already studied. First 3 example. Now 4 carbon has different 4 possibility. Okay, first possibility is first per Br, third per methyl. First per Br, third per methyl. Second, here see here, first per Br, second per methyl. So now क्या होगा 1 bromo 3 methyl butane, 1 bromo 2 methyl butane. You can see 1 bromo 3 methyl
1 bromo 2 methyl. Okay, you can see here bromine containing carbon, ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो क्या होगा? प्राइमरी. ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन, फर्स्ट कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी. बाकी की दो पॉसिबिलिटी यू कैन सी हियर, बीजा पर ब्रोमीन मतलब सेकंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे मिथाइल. सेकंड पे ब्रोमीन, थर्ड पे मिथाइल, तो हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. सेकंड पर ब्रोमीन, सेकंड पर मिथाइल, तो क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया 2 3 2 2. चलो टाइप જોઈએ. ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? ब्रोमीन वाला कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? 1 and 2. सो दैट इज सेकेंडरी, द्वितीयक. ब्रोमीन से जुड़ा कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, तो क्या हुआ? टर्शरी. ओके, तो टोटल 7 एग्जांपल हो गए. अब लास्ट में 3 कार्बन का एक ही एग्जांपल है. ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन, इट इज अटैच्ड विथ ओनली 1 कार्बन. बराबर. लास्ट एग्जांपल તમે જુઓ તો 1 ब्रोमो 2 2 डायमिथाइल पेंटेन, सॉरी प्रोपेन. तो ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन एक ज कार्बन સાથે સીધો જોડાયેલો છે એટલે કેવું લખાય? प्राइमरी. અહીંયા દેખાય તમને તૃતીયક, टर्शरी, बट होता है प्राइमरी. सो दिस इज एग्जांपल नंबर 10.1 ऑफ टेक्स्ट बुक. ओके, सो इनिशियली शुरू में आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, हाइड्रोजन ऐड करने, देन आफ्टर यू कैन इजीली सी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड कंपाउंड. So this is 10.1. Now we will see 10.2 of textbook. In 10.2 of textbook, मजेदार question is given, and that मजेदार question is write IUPAC names of the following. આજે દેખાઈ રહ્યા છે 6 બંધારણ, 6 structures, and IUPAC names તમારે show કરવાના છે. So we will see also IUPAC names of the structure. Okay. First of all, to understand this structure, we have to take this structure clearly. Okay. See the question number 1. CH3 double bond CH3Br. This is the structure. Okay. For IUPAC naming, first of all, we have to consider different functional groups. Okay, આપણે question number 1 એની જ વાત કરીએ છીએ. એને સમજવા માટે આપણે એને થોડું ફોકસ કરી રહ્યા છીએ. See, number 1, CH3 CH double bond CBr CH3. Okay, in this example you can see different 2 functional groups are there. In this example different 2 functional groups are there, double bond and Br. According to the rule of IUPAC, IUPAC के रूल के हिसाब से अगर कोई स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आपको ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना होता है. रूल पता होगा आपको, गिव मिनिमम नंबर टू मैक्सिमम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. सो તમને ખબર હશે કે डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन हेलोजन. हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है डबल बॉन्ड. सो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे, इधर से लेफ्ट साइड से, तो डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिलेगा? 1 2. सेकंड पर डबल बॉन्ड आ गया. अच्छा, राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा. सो वी कैन से दैट 1 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड है. ओके, लेफ्ट साइड से सेकंड पे डबल बॉन्ड, राइट साइड से थर्ड पे डबल बॉन्ड है, 1 2 and 3. सो आवर रूल इज दैट गिव मिनिमम नंबर टू मैक्सिमम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप. सो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर लेफ्ट साइड से मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट साइड से,
1 2 3 4 5। अच्छा, फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन है ना, तो पूरा नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो। ओके, फिर 5 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड है, तो पेंट लिखना है, पेंटेन नहीं, क्या लिखेंगे? पेंट। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इट शुड बी 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, वेरी सिंपल। ओके, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है उतना बिल्कुल नहीं है। दिस इज योर आंसर, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल। In second example, we will start from left to right. Okay, so you can see the structure. This is first carbon, second carbon, downside third carbon, and fourth carbon. So 4 carbon chain is given. Okay, how many functional groups are there? How many functional groups are there? 3 functional group: bromine, methyl, and double bond. Bromine, methyl, and double bond. So you have to give मिनिमम नंबर टू मैक्सिमम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। तो अब लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेट करें तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा? फर्स्ट। और राइट साइड से कैलकुलेट करें तो डबल बॉन्ड का नंबर आएगा 1 2 3, थर्ड पे आएगा ना। ओके, सो लेफ्ट साइड से नंबर 1, राइट साइड से नंबर 3। रिमेंबर, लेफ्ट साइड से नंबर 1, राइट साइड से नंबर 3। तो मिनिमम नंबर देना है तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 1 पर डबल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल, 3 पे ब्रोमो। ओके, नेमिंग માટે તમે વિચારો કે થર્ડ પર બ્રોમિન છે તો બી પહેલા કે એમ પહેલા? બી ને, अल्फाबेटिकल प्रमाणे। तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। व्हाट इज द नेम? 3 ब्रोमो 2 methyl but 1 in. So you can see the name of second compound, 3 bromo 2 methyl but 1 in. Okay, very nice. Now we will see number 3. Okay, question number 3. एक्सरसाइज नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 10.2। एग्जाम्पल नंबर 10.2 उसमें थर्ड हम देखेंगे। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इजीली, सी हियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वी विल टेक, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, fourth carbon and fifth carbon. How many carbons are present? 5. Now remaining all are functional group. 5 कार्बन की चेन है, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो डबल बॉन्ड को नंबर क्या मिलेगा? 1 2। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आएगा? 1 2 3, तीसरे पे आएगा ना। अच्छा, लेफ्ट साइड से दूसरे पे और राइट साइड पे तीसरा नंबर आ रहा है, तो मिनिमम नंबर देना है ना, इसलिए हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, थर्ड पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। और 4 पर कौन है? ब्रोमो। बोलो, ब्रोमो का बी पहले या मिथाइल का एम? बी पहले आएगा ना, इसलिए क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सेकंड पे डबल बॉन्ड तो आएगा 2 इन। तो फिर से एक बार नाम देख लें, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 कार्बन, बैंड 2 इन। ओके, अंडरस्टूड? आई होप। एक बार नेम देख लेते हैं, चेक इट नाउ। यू कैन सी 4 ब्रोमो 3 मिथाइल बैंड 2 इन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, zoom it and calculate it. First carbon at the end, first carbon,
Okay, this is second carbon, this is third carbon, fourth carbon. So 4 carbon chain is present. Okay, डबल बॉन्ड उसको मिनिमम नंबर देना है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा 1 2, सेकंड पे डबल बॉन्ड है। राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा 1 2, सेकंड पे डबल बॉन्ड है। तो दोनों साइड से सेकंड नंबर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब ब्रोमीन को मिनिमम नंबर दे सकते हैं, चलो ब्रोमीन को नंबर 1 देते हैं तो क्या आएगा 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और 2 पे डबल बॉन्ड, तो आपका नेम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। यू कैन सी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, पहले पे ब्रोमीन, दूसरे पे मिथाइल, दूसरे पे डबल बॉन्ड। नाउ एग्जांपल नंबर 5। ओके, इन एग्जांपल 5 में कार्बन कैलकुलेट करो 1, दिस इज 2, this is 3, only 3 carbons are given। अच्छा, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हैं, डबल बॉन्ड को लेफ्ट साइड से नंबरिंग दें, लेफ्ट साइड से तो क्या आएगा 1 2 1 2। राइट साइड से नंबरिंग दे तो टोटल कितने कार्बन है 4 कार्बन है ना, राइट साइड से नंबरिंग दे दो 1 2, सेकंड ही आएगा, सो 4 कार्बन की चेन। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो 1 2, राइट साइड से नंबरिंग करो तो भी 1 2। ओके, तो ब्रोमीन को मिनिमम नंबर देते हैं, ब्रोमीन को मिनिमम नंबर देते हैं तो क्या आएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। व्हाट शुड बी द नेम 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। आप देख सकते हो पहले पे ब्रोमीन, दूसरे पे डबल बॉन्ड, सो नाउन शुड बी 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6। In example number 6, calculate the number of carbon। चलो यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, तो here it should be first carbon, this is second carbon, this is third carbon। How many carbons are there? 3 carbon। Okay, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, राइट साइड से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिलेगा। देखो 1 and 2, तो मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को देना है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से नंबर दें 1 2 3। थर्ड पर कौन है Br, तो नेम क्या होगा पहले 3 ब्रोमो। ओके, फिर देखो 1 पर ब्रोमीन, सेकंड पे मिथाइल है ना, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोपीन। क्या लिखेंगे प्रोपीन, या फिर लिख सकते हैं प्रोप 2 इन तो भी चलेगा, सॉरी प्रोप 1 इन तो भी चलेगा, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट लूप पे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो वी हैव कंप्लीटेड 10.1 10.2। now our next question is write the structures of the following compound। હવે ટેક્સ્ટબુકમાં શું છે કે 3 ટાઈપના પ્રશ્નો છે, એક એક્ઝામ્પલ એટલે કે કોયડો ઉદાહરણ, સેકન્ડ ટાઈપ છે ઇનટેક્સ ક્વેશ્ચન, એને લખાણ સંબંધી પ્રશ્નો કહેવાય, એન્ડ થર્ડ છે એક્સરસાઇઝ મતલબ સ્વાધ્યાય। સો ઇનટેક્સ ક્વેશ્ચનમાં તમને સોલ્યુશન તરત નહીં આપ્યું હોય, ચેપ્ટર પતે પછી આપ્યું હશે, એટલે એ આપણે જાતે કરવાના હોય છે, જેને આપણે સેલ્ફ લર્નિંગ બુક તરીકે લોઅર સ્ટાન્ડર્ડમાં જાણતા હતા, સ્વાધ્યાય પોથી, બરાબર। તો એનો ક્વેશ્ચન છે રાઇટ ધ સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કમ્પાઉન્ડ, મતલબ આ બધા સંયોજનો છે જેના નામ આપ્યા છે એના સ્ટ્રક્ચર્સ ડ્રો કરવાના છે। તો હવે એના સ્ટ્રક્ચર્સને ડ્રો કરવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે, એ ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરીશું। ઓકે, એનો એ પ્રશ્ન આપણે અહીંયા લઈએ છીએ, સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કમ્પાઉન્ડ।
Okay, now write the structures of the organic halogen compound. પહેલો ક્વેશ્ચન છે 2-chloro-3-methyl pentane. તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આઈયુપીએસસી નેમિંગ ભણ્યા હતા ને, હવે એનાથી ઓપોઝિટ ભણીશું નામ પરથી સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે શો થાય. એને શો કરવાના અથવા તો ડ્રો કરવાનો રૂલ્સ છે. એમાં ફર્સ્ટ રૂલ છે स्टार्ट फ्रॉम एंड, मतलब अंत से स्टार्ट कीजिए. बराबर, कोई भी नेम આપ્યું હોય તમને, એ નેમ ના છેલ્લા લેટર થી સ્ટાર્ટ કરીને આગળ વધવાનું છે, એટલે તમને આખું સ્ટ્રક્ચર પ્રિપેર થઈ જશે. બરાબર, જેમ કે જો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કેવો છે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 2-chloro-3-methyl pentane. 2-chloro-3-methyl pentane. હું આ બધું થોડું રફ કરી નાખું તો તમને સમજાવવું ખૂબ સરળ રહેશે. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓકે, આપણે આવી ગયા છીએ 2-chloro-3-methyl pentane. નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું જોવાનું, we will see pentane. So write down only carbon without hydrogen. Okay, 5 carbon linearly draw કરવાના છે. તો પહેલા 5 કાર્બન ની ચેઇન ડ્રો કરો. નાઉ 3-methyl रिवर्स में जैसु. 3-methyl मतलब थर्ड कार्बन पे मिथाइल है. 2-chloro means सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है. So first of all draw 5 carbon atoms. Okay, and then after सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड पे मिथाइल लिखे. जितने भी कार्बन है उस पे हाइड्रोजन आप ड्रॉ कर दीजिए. इट विल गिव प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. बराबर, रूल तुमने याद हशे. अगर एक ही बॉन्ड है कार्बन का 3 हाइड्रोजन, 2 bonds 2 हाइड्रोजन, 3 bonds 1 hydrogen, 4 bond no hydrogen. Okay, so now let us see structure number 2, that is para-bromo-chlorobenzene. So first of all we focus on last word benzene. So write down, draw down benzene. para-bromo, para का मतलब होता है frontier position, आमने सामने. So we will see bromine at one's position, और उसके बरोबर सामने की पोजीशन पे क्या लिखेंगे, क्लोरीन. एज यू नो दैट नेबर्स होय तो ऑर्थो, फ्रंटियर्स होय तो पैरा અને ઓલ્ટરનેટ્સ હોય તો મેટા પોઝિશન આવે. સો સ્ટ્રક્ચર આવશે પેરા બ્રોમો ક્લોરો બેન્ઝીન. નાઉ થર્ડ વન 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. So first of all we should consider cyclohexane. So in this solution there is a mistake. સાયક્લોહેક્સેન ની જગ્યાએ બેન્ઝીન ડ્રો કર્યું છે. તમારે આ ચકેડું ડ્રો કરવાનું નથી. બરાબર, જ્યારે બી આ પીડીએફ તમને મોકલું તો હોમવર્ક કરતા પહેલા ધ્યાન રાખજો કે સાયક્લોહેક્સેનમાં ચક્ર ના હોય, એટલે કે this should not be drawn. Okay, cyclohexane means hexagonal structure. 1-chloro and 4-ethyl. So first carbon per chlorine. This is 1 2 3 4. So fourth कार्बन पे इथाइल तो हो गया ना 1-chloro-4-ethyl cyclohexane. So this is example number 3, question number 3. Now question number 4, that is 2-chloro-phenyl 1-iodo-octane. Remember, whenever you have given bracket, it indicates that ब्रांच हैज ऑल्सो ब्रांच. जब भी आपको आईयूपीएससी नेम में ब्रैकेट दिया होगा तो आपको सोचना है कि जो एक चेन होगी कार्बन की, उसकी कोई ब्रांच होगी, उसमें भी कोई ब्रांच होगी, तभी उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड. ऑक्टेन लिखा है यहाँ पे, और ऑक्टेन में पहले कार्बन पे आयोडीन है, मतलब 1 आयोडो. So what we should do, we should write 8 carbon. You can see here, this is 8 carbon. Okay, so
8 कार्बन मीन्स ऑक्टेन, उसमें फर्स्ट पर आयोडीन है तो क्या होगा 1 आयोडो, एंड सेकंड पे लिखा था 2 क्लोरोफिनाइल। यू कैन सी द क्वेश्चन, सेकंड पे लिखा था ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल। तो आप देखो ऑक्टेन के फर्स्ट कार्बन पे आयोडीन है एंड सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरोफिनाइल है, रिमेंबर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट पे आयोडीन आ गया, ओके, सेकंड पे क्लोरोफिनाइल है, क्या है क्लोरोफिनाइल। क्लोरोफिनाइल को हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, लेकिन बेंजीन वर्ड तभी यूज कर सकते हैं जब वो मेन ब्रांच हो, बराबर। बेंजीन वर्ड हम तभी यूज कर सकते हैं जब वो मेन ब्रांच हो, जब वो खुद ही किसी की चेन पे लटका हुआ हो तो उसको बेंजीन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फिनाइल, बराबर। आ तमने एग्जांपल 11th में पण कीधुं तो कि अगर कोई फ्रेंड है उसके घर पे जाते हैं, जैसे राधे है उसके घर पे अगर रुद्र जाता है तो राधे हुआ होस्ट और रुद्र हुआ गेस्ट। अब हुआ क्या, अचानक से कोई गेस्ट आए हैं, ओके, राधे के घर पे। किसके घर पे गेस्ट आए, राधे के घर पे, बराबर। तो राधे क्या कहेगा, आइए बैठिए, क्या काम है, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, घर पे जाइए। लेकिन रुद्र जो खुद गेस्ट है वो कभी भी रुद्र के गेस्ट को, मतलब राधे के गेस्ट को ऐसा बोलेगा जैसे राधे के घर पे गेस्ट आए ना, उनको रुद्र कहता है नहीं मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, आपको खाना खाए बगैर जाने ही नहीं दूंगा राधे से घर पे, बराबर। सो दिस टाइप ऑफ philosophy is applied here. Here 8 carbon chain is present which is host and benzene is latkel, so it is not called benzene, it is called phenyl, it is called phenyl, and that's why second पे आएगा 2 क्लोरोफिनाइल। मतलब ये जो ब्रांच हुई सेकंड कार्बन पे जो बेंजीन जुड़ा ना, उस कार्बन को हमें फर्स्ट नंबर देना है। बेंजीन का जो कार्बन मेन ब्रांच से जुड़ा है, बेंजीन का जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उसको नंबर 1 कहेंगे, सेकंड को नेबर में 2 कहेंगे। तो सेकंड पे क्लोरीन है तो इसलिए पूरा नाम क्या होगा 2 क्लोरोफिनाइल। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये स्ट्रक्चर। फिर से एक बार 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेट के 8 कार्बन लिखो, पहले पे आयोडीन और दूसरे पे 2 क्लोरोफिनाइल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 જેનું સોલ્યુશન અંદર ખોટું આપ્યું છે, આ તો એમને બી તમને આવડશે। 2 ब्रोमोब्यूटेन બહુ જ ટફ કહેવાય। अब देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया है, उसमें ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन, ओके। उसमें सेकंड पे ब्रोमीन रख दो तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, सिंपल। फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन। फिर से 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आयोडो पेंटेन, आयोडो हेप्टेन। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में तमने हेप्टेन कीधुं छे, हेप्टेन में કેટલા કાર્બન્સ હોય, हेप्टेन में કેટલા કાર્બન્સ હોય 7। तो 7 कार्बन ની चेन लखो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 3 आयोडो हेप्टेन मतलब थर्ड कार्बन पर आयोडीन आवशे। हूँ राइट साइड अहींया नंबरिंग शुरू करूं राइट साइड थी, तो 1 2 3 थर्ड पे क्या आया आयोडीन, ओके। फिर लिखा है 4 टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे मैंने समझाया था, शायद आपको याद होगा। टर्शरी किसे कहते हैं, जब डैश वाला कार्बन, यहाँ देखो डैश वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे टर्शरी कहते हैं। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल फंक्शनल ग्रुप। सो यू कैन सी डैश वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 3, सो दैट इज नोन एज टर्शरी ब्यूटाइल, ओके। सो एग्जांपल नंबर 6 3 आयोडो 4 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन, ओके।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, उसमें लिखा है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पहले बेंजीन ड्रॉ कीजिए। ओके, फिर बोल रहे हैं फर्स्ट पे ब्रोमो, फिर सेकंड पे मिथाइल। पहले इतना ड्रॉ करते हैं, बेंजीन, फर्स्ट पे ब्रोमो, सेकंड पे मिथाइल। तो आप देखो यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने बेंजीन। अच्छा, फर्स्ट पे क्या ड्रॉ किया? ब्रोमो, सेकंड पे आएगा मिथाइल। ओके, फिर बोल रहे हैं यहाँ पे लिखा है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, 4 secondary butyl. So I will remind you what is secondary butyl. Secondary butyl का मतलब होता है 4 कार्बन्स हैं लेकिन एंड पर नहीं, अंदर कोई कार्बन पे डैश है। ओके, 1 2 3 4 बीजा ऊपर लटक्यो यार। तो सेकंड कार्बन पे डैश है तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर। फिर से याद करा दूं, पहले बेंजीन ड्रॉ किया, फर्स्ट पे ब्रोमीन, सेकंड पे मिथाइल। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4, ये कौन सा कार्बन हुआ? 4। उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखना हो तो आप देखो डैश वाला कार्बन जो है वो 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो हो गया ना 4 कार्बन की चेन। ओके, उसमें सेकंड पे डैश आया तो क्या हुआ? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो फिर से एक बार आप लिख सकते हो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 methyl benzene. Okay, now last example, that is 1,4 dibromo-bute-2-ene. तो पहला रिवर्स में चेक करो, ब्यूट-2-ene। ब्यूट-2-ene का मतलब है सेकंड पे डबल बॉन्ड। सो यू शुड ड्रॉ 4 कार्बन्स, दैट इज ब्यूट, सेकंड पे डबल बॉन्ड। ओके, तो 2-ene लगा दो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2-ene, 1,4 dibromo bute 2-ene. So this is simplest example of structure from nomenclature. So we have completed exercise number 10.1, 10.2 and in-text question which has different 8 structures. So today we will stop here for learning. In this chapter we have given exercise, and in this exercise you have given some IUPAC naming question just like this. Okay, see question number 10.1. 10.1, give IUPAC name of this 12 compound. 10.2, okay, give IUPAC name of the compound. 10.3, draw the structures from the name. Okay, so these 3 questions you should complete in your homework also. So आज का आपका homework है example 10.1, 10.2, in-text question, okay, 2 times, and exercise 1 time, means 10.1 exercise, 10.2 and 10.3 complete. Okay.